Hi all, welcome back to Puzzle Box. I am Rivjot Singh, your master teacher at Vedantu Olympiad School. I hope you all must have enjoyed previous sessions of Puzzle Box in which we had explored various varieties of cubes. So today also we shall be continuing with cubes only. But the agenda is counting question. That is, we need to count cubes in the given diagram, in three-dimensional diagrams. A very interesting topic, and I hope you all must be enjoying this. For all those who are watching this video for the very first time, we welcome you to Vedantu Olympiad School, your one-stop solution for all Olympiads, KVPY, NTSC and all premier examination. We are here to help you out in the best possible manner. So let's start with the awesome journey. We shall be focusing cubes today, and for all those who are watching this for the first time, do watch the previous sessions because they all are connected to cubes. Now, in many of the examinations like NTSC, we tend to get questions in which we need to count. Means, कभी वो बोलते हैं circle count कीजिए, कभी कहते हैं triangle count कीजिए. Sometimes they say count total number of triangles, and many times they say count total number of cubes also. So today we are going to focus cubes. So let's start with that. And at the end I shall be discussing last lectures, puzzle of the day, and I shall be announcing the names of the students जिन्होंने सही आंसर दिए थे. So let's start with the first question. The first question is in front of you. It says count the number of cubes in the given diagram. Diagram आपके सामने है, थ्री डायमेंशनल वॉल है, क्यूब्स आगे हैं, क्यूब्स पीछे हैं. हमें विजुअलाइज करना है और समझना है कि टोटल कितने क्यूब्स हैं. Now, as I have said in the previous sessions also, विजुअलाइजेशन के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है. जब आप 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है. बट विजुअलाइजेशन को इनिशिएट करवाने के लिए आई शैल बी यूजिंग सम ऑफ द एनिमेशन फॉर फ्यू क्वेश्चंस, ताकि हमें समझ आ सके कि कितनी लेयर्स हैं. सो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ लेयर्स बेसिकली. So let's start with the first question which is in front of you. If you know the answer, quickly post in the comment box or in the chat box and let me know कि आपको पहले से ये आंसर पता है या नहीं पता, या आप इसको सही से काउंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते. बट अभी के लिए, as I can see, I have got a U-shaped diagram. It's a wall or it's a thick wall. At some point it is very thick. At some point it has got only one layer. So let's move on to dissection of this wall. What I have done is I am removing the layers. I am removing the layers so that I am in position to count properly. Now, as you can see, I have got 3 layers with me, and now I am numbering them. Total is 35. I have numbered all the cubes and the total comes out to be 35. So there are 35 cubes. Now it is very important for us to check that there are 3 layers. So whenever you have got any 3-dimensional diagram, make sure you are in position to divide that diagram into layers. Never ever start like this कि अरे पहले ये काउंट कर लूं, फिर ये काउंट कर लूं, ये काउंट कर लूं, ये काउंट कर लूं. You would be leaving 1 or 2 cubes, or maybe you would be counting more cubes. So always go in a proper manner, with a proper approach, and the approach is very simple. Count layer wise, either horizontally, vertically, diagonally, or up to you as per the diagram. So I hope the first question, which was one of the most easiest question, is clear to you. तो आप visualize इसको कर पा रहे हैं. Total of all these cubes is 35 and it is visible to you, right? So let's move on to the next question. The next question of the puzzle box. Again, it is about the counting of cubes. The question says, count the number of cubes in the given diagram. Now this diagram is much complex as compared to the previous one because it has got multiple layers. So it's up to you how you divide it. But my task here is to guide you that how can we break this. So I shall be using the animation also. But जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं एनिमेशन यूज नहीं करूंगा क्योंकि पेपर में हम एनिमेट नहीं कर पाएंगे. In the examination we need to count there by our visualization only. So with the few questions, starting few questions, I am trying कि आपका visualization better हो और फिर आप बिना किसी एनिमेशन के भी अलग अलग लेयर्स को अच्छे से काउंट कर पाए. एंड बिलीव मी, इफ यू आर टारगेटिंग NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जिसमें हाफ पेपर मेंटल एबिलिटी है, देन काउंटिंग क्वेश्चन इज सच अ वैरायटी जो बहुत सारे बच्चों का गलत होता है.
बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं. इफ यू काउंट 38 दे से 39, इफ यू काउंट 39 दे से 40. बट फिलहाल के लिए देयर आर नो ऑप्शंस बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर प्रैक्टिसिंग द वैरायटी ऑफ काउंटिंग ऑफ क्यूब्स. आई होप मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया इसको काउंट करने का. बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अब दे सकते हैं. क्विकली पोस्ट इन दी चैट बॉक्स और इन दी कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या है. आपको कितने क्यूब्स लगते हैं ये. टोटल हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन दिस 3-dimensional diagram. Right. Now you must have count or you must have landed at one answer or the other, but I am proceeding on to the actual answer and the actual approach. So let's begin. So हमने इस अच्छे से डायग्राम के टुकड़े कर दिए. Right. Now I can see lot many cubes very clearly and I can easily count also. But if I talk in terms of layers, it is visible to me. This is the first layer, and then I have got similar pieces, 4 one type, 2 one type, and then 4 singular ones. So if I add all these, my answer would be that is 46. I hope आप में से बहुत सारे students ने 46 सही आंसर दिया होगा, right? So let me explain this once again. Okay, so we can easily check that the answer is 46. Why so? Because there is a vertical column, right? There is a vertical column having 7 on one side, so the total is 14, and I am talking of this one. Next you can see there are 4 single cubes, so वो भी count कर लिया हमने. Then we are talking of 16. Now how come 16? You can see there are 4 over here, and ऐसे हमारे पास कितने डायग्राम है? 4 डायग्राम है. That is this one, and then we have got this one, and then we have got this one, right? 16 are there. And next we have got that is 12. Now how come it is 12? That is, you can easily count that this is 6 and this is also 6, and this 4 corresponds to these 4, right? I hope it is clear to most of you now, right? So very easy question, provided हम इसको अच्छे से visualize कर पाएं. So it's a game of visualization. यहां पे मैंने पर्टिकुलरली उस 3D डायग्राम को तोड़ के आपको समझाया है ताकि विजुअलाइजेशन डेवलप हो पाए. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्रक्स. व्हाट वाज द एक्चुअल डायग्राम? सो द एक्चुअल डायग्राम वाज दिस एंड द आंसर इज 46. इसी डायग्राम को हमने डिसइंटीग्रेट किया था. आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स प्रैक्टिस अनदर वंडरफुल क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. वंडरफुल डायग्राम. एक फोर्ट बन गया और जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं. द टॉप व्यू ऑफ अ फोर्ट, पुराना फोर्ट जो टूट फूट गया है, 4 दीवारी है, एंड 4 वॉल्स आर देयर. नाउ आई नीड टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स. क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, डायग्राम चेंज होते जा रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल भी वेरी कर रहा है. लेट्स प्रैक्टिस दिस. अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ आए हैं तो यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन राइटली. बट एज आई एम हेल्पिंग यू इन एवरी क्वेश्चन, सो मैं इसको भी तोड़ूंगा, इनकी भी लेयर्स अलग अलग करूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए. बट आफ्टर दिस वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक एनी डायग्राम. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस विद काउंटिंग ऑफ लेयर्स ओनली. सो लेट्स प्रोसीड विद दिस डायग्राम. अलग 4 लेयर्स बन गए. वेरी मच विजिबल टू ऑल ऑफ यू दैट वी हैव गॉट 4 वॉल्स, एंड उन वॉल्स के सारे क्यूब्स नजर आ रहे हैं जो आप बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. करते हैं फिर उनको काउंट. So the first layer is there, and you can easily count how many are there. 3, and then 4 7, and then 11, and then 3 14 and 8, that is 22. I can see 22. Moving on to this side, I can see 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Moving on to that one, I can see 2, and then 4 6 7 8 9 10 11 12. Moving on to this one, I can see 4 3 7 and 4 11 12 13 14 15 16. So if I add all these, I'll land up at the answer of 63. तो आप में से काफियों ने सही किया होगा by posting in the chat box. I repeat once again, 4 simple layers are there and we need to count those. But मैंने आपका काम कैसे आसान कर दिया, मैंने उनको तोड़ दिया, तो बेटर विजुअलाइजेशन हुआ और काफियों का आंसर सही आ गया. बट पेपर में इस तरीके से एनिमेशन यूज नहीं हो सकता. So we need to build that visualization. Right students, I hope you must be enjoying this. अब कुछ गाड़ी ट्रैक पे आ रही होगी, बट
नेवर फील इरिटेटेड कि अगर आपका आंसर किसी एक क्यूब के कारण या दो काउंटिंग के कारण आगे पीछे हो जाए। अच्छी बात है कि अगर हम अभी गलत करते हैं ताकि पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो, बिकॉज गलती करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ओके वेयर वी आर रॉन्ग, एंड देन वी वुड बी लर्निंग एंड देन वी वुड बी इंप्रूविंग, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट वाज द एक्चुअल डायग्राम? दिस वाज द एक्चुअल डायग्राम जिसको हमने डिसइंटीग्रेट किया था और आंसर 63 आया। 4 लेयर्स हमारे पास आए थे। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसके अंदर हम तोड़ा फोड़ी नहीं करने वाले, राइट। Let's see what the diagram is and what the question is. The question remains the same. Count the number of cubes in the given diagram. But diagram भी आसान है और मैं इसको तोड़ नहीं रहा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पेपर में जब डायग्राम आता है तो हमें क्या करना है। पेपर में हम उसको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, एनिमेशन नहीं लगा सकते, but we can always visualize layers. So what I will do is I will mark this question with certain layers and I will count cubes of every such layer ताकि गलती ना हो। So I am marking all those layers in front of you. It is very much visible. Layer 1 सबसे पीछे वाली लेयर कितने नजर आ रहे हैं मुझे? उसमें 8। Why 8? वैसे तो ये 3x3 वॉल होना चाहिए था, बट इसमें एक यहां पे आप देख पा रहे हैं एक मिसिंग है, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर आर 8। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। दिस इज लेयर नंबर 1। देन मूविंग ऑन टू लेयर नंबर 2 जो बहुत ही आसान है, एल शेप्ड है, तो 3 एट द बॉटम एंड देन 1, दैट इज 4, which is also very easy to count and easy to calculate. Then I can see the front layer, that is layer number 3, right? I can see again L-shaped diagram is there, then 3 are there and 1 4 is there, right? So that is, I am talking of this particular layer and यहाँ पे mention भी कर रखा है। So the total of the question is 16, right? I hope it must be clear to all and आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे समझाने से पहले ही सही आंसर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया होगा चैट बॉक्स में, राइट। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। हमें क्यूब्स कैसे काउंट करने हैं हम उसका तरीका सीख रहे हैं एंड इट इज सिंपली जस्ट काउंटिंग इट बाय लेयरिंग इट। हमेशा लेयर की तरह काउंट कीजिए ताकि कहीं पे रेपिटेशन ना हो जाए या कहीं पे कुछ छूट ना जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस, दैट इज काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन डायग्राम। Oh my god, now we have got bricks in the form of cubes. So, big diagram, again, as I can see, there are a lot many layers, this way, so I shall be counting in that manner only. हाँ, अगर मैं इसको तोड़ के अच्छे से एनिमेशन लगाता आपको बहुत बेहतर समझ आता, बट यहाँ पे हम एनिमेशन की बजाय लेयर्स वाली अप्रोच लगाएंगे क्योंकि पेपर में भी जब हमें प्रिंटेड में लगा तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। So let's move on to that. Answer to the question is 39, but let's focus all those layers. Layer number 1, as you can see in this particular layer, ये 3x4 का एक वॉल हो सकता था, बट यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे एक मिसिंग है, तो टोटल इज दैट इज 11 इंस्टेड ऑफ 12 इट इज 11। Why it is 11? Because ये 3x4 का वॉल है, I can see, and 1 is missing. Moving on to the second layer. Second layer छोटा है, सेकेंड लेयर 3x3 हो सकता था, बट यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक मिसिंग है, तो दैट मीन्स 3x3 9 में से एक कम, 8 इज देयर। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर तो बहुत सिंपल है, इट इज लाइक सी, इस तरीके का शेप है उसका, एंड आई कैन इजिली काउंट देयर आर 6, 4 एट द बॉटम, 1 एट दिस पॉइंट, 1 एट दिस पॉइंट, राइट। आई एम टॉकिंग ऑफ दीज टू, राइट। यू कैन सी 1 is here, 1 is here, and then 4 on the bottom, so the total is 6. Moving on to the next layer, that is the fourth layer. I can see L-shaped diagram. In the L-shaped diagram, 4 are at the bottom and 2 on the top, so total is 6, very much visible. I am talking of this layer, right? And then we have got the last layer. Last layer is very much clearly visible to all of you, so we have got 8 in this. I am talking of this layer, right? In this layer you can see 3 and 3 6 and 2 on the bottom, that is 8. So the total of 11 and 8 and 6 and 6 and 8 is 39. Beautifully answered by many of these students, right? बहुत सारे बच्चों का विजुअलाइजेशन लग गया होगा इसके ऊपर अच्छे से। कुछ का आंसर एक आधा ज्यादा एक आधा कम आया होगा और वो अभी भी सोच रहे होंगे अरे यार यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था, अरे यार आंसर ये होना चाहिए था, बट बच्चे आंसर ये सही है। यू नीड टू प्रैक्टिस एंड विद प्रैक्टिस यू वुड बी लैंडिंग अप एट द राइट आंसर। मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए, बिकॉज whenever I give any number of options, so people tend to tick the option which is closest to their answer. But in paper, you will get options which are really very close. Like if the answer to this question is 39,
you may get options like 37, 38, 39, 40, ताकि आप कम अगर काउंट करें तो भी ऑप्शन रहे, ज्यादा काउंट करें तो भी ऑप्शन रहे, और आप खुश हो जाएं कि अरे भाई आंसर सही हो गया, जबकि ऐसा नहीं होगा. One more tip. In whatever questions which were asked in NTSC in concern to counting question, आंसर कभी भी none of these नहीं होता. काउंटिंग क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन मिली है तो उसका आंसर कभी भी none of these नहीं होता. ये पुराना चलता आ रहा है, बिकॉज जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है उसकी कोशिश ये होती है कि आप सही आंसर ढूंढें और मार्क करें. नन ऑफ दीज इसलिए 4 ऑप्शन में रखा जाता है कि जब आप गलत तरीके से काउंट करें तो आप नन ऑफ दीज को टिक करें और खुश हो जाएं कि आपका आंसर सही हो गया, जो कि एक्चुअली गलत होगा. राइट. सो इफ यू आर गेटिंग आंसर एज नन ऑफ दीज इन एनी ऑफ द काउंटिंग क्वेश्चन, तो प्लीज उसको दोबारा काउंट कीजिए. देयर आर चांसेस कि वो नहीं होएगा. राइट. ये प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी मींस ज्यादातर ऐसा होता है. राइट. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल थिंग which is puzzle of the day of. Okay, let's explore previous puzzle of the day. ये पजल लास्ट सेशन में पूछा गया था. अभी हमें इसका आंसर देखना है, और जैसा मैंने कहा बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो मैं उनके नाम भी बताने वाला हूं कि किन किन का आंसर सही था. So the question says 4 standard dice. Standard dice means जहां पे sum of opposite faces is 7. So he says 4 standard dice are stacked on a table and टेला के जैसे एक के ऊपर एक रखे हैं. What will be the maximum sum of numbers visible to a person who can see this arrangement from all angles including back side? अगर आप इसको हर तरफ से देख सकते हैं तो आपको बताना है कि मैक्सिमम सम कितना बनेगा. मींस हमें ये चेक करना है कौन कौन से हिडन फेसेस हैं जो नहीं काउंट हो पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन चले. सो पहले इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कितनों ने सही आंसर बताया. मूविंग अहेड. सो द आंसर टू द प्रीवियस पजल ऑफ द डे इज 57. बट कैसे? As you can see, the first one जो आप सबसे पहला देख पा रहे हैं, that is this one. इसमें अगर टॉप पे 1 है तो यहाँ पे हिडन जो है वो 6 है, और यहाँ पे भी 1 है जो आपको नहीं नजर आ रहा. That means ये 6 + 1 मैं नहीं देख पाऊंगा. Similarly यहाँ पे और इस बेस में, that is यहाँ पे 1 होगा और 6 होगा जो मैं नहीं देख पाऊंगा. Similarly 6 and 1 होगा जो मैं नहीं देख पाऊंगा, और क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है तो ये बॉटम पे पक्का 6 होगा जो मैं नहीं देख पाऊंगा या नहीं ऐड कर पाऊंगा. दैट मीन्स व्हाट ऑल इज मिसिंग, दैट इज 27. आई विल ऐड ऑल दीज एंड आई विल सी कि 27 जो है वो नहीं काउंट हो सकता. बट अगर मैं सब कुछ काउंट कर पाता, इफ आई वॉज इन पोजिशन टू काउंट ऑल फेसेस, तो आई नो दैट 1 डाइस इन एनी डाइस सम ऑफ ऑल फेसेस इज 21. यहां पे मेरे पास कितने डाइस हैं? दैट इज 4 डाइस. So if I multiply 21 by 4, I'll end up at 84. अगर मैं सभी फेसेस को काउंट कर लूं तो आंसर 84 आएगा. पर मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं किसको काउंट नहीं कर पा रहा? मैं 27 को काउंट नहीं कर पा रहा, तो मैंने 84 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड माय आंसर इज दैट इज 57. मींस 57 इज द राइट आंसर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक आउट द नेम्स ऑफ ऑल दोज जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया था. To start with Elvina, Angad, and then we have got Gajendra, Anu, Leela, Krishna, Ishan, Rajesh, Hardev, Ayush, then Rohit, then Sarveshwar, Ramkrishna, Chulbul Singh, Anurag, then Abhishek, and then Siddharth, Swastik, and then Naman and Kamlesh, Reena, and many more. Maybe हो सकता है मैंने एक आधा नाम मिस किया हो, but I'm really very happy कि इतने सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताया. So that means आपको क्यूब्स बहुत अच्छे से समझ आया. Now I am giving you next puzzle of the day, यानी कि आज की puzzle of the day. And similarly जैसे आपने पिछले puzzle का आंसर दिया, चैट में या कमेंट बॉक्स में जरूर उसके आंसर भेजिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन सब बच्चों के नाम बता पाऊं जिन्होंने सही आंसर बताए थे. राइट. सो हियर कम्स द puzzle of the day for today's session. Count the number of cubes in the given diagram. तो मैंने आज आपको बहुत सारे डायग्राम्स दिखाए, आपने काउंट किया. अगर आपको वो समझ आए तो आई एम श्योर आप बिल्कुल सही आंसर बताने वाले हैं इस डायग्राम का. एंड आई वुड बी ईगरली वेटिंग टू सी कि जिन्होंने पिछली बार सही बताया था वो इस बार सही बताते हैं या नहीं. एंड फॉर ऑल दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेल आई वेलकम यू ऑल कि आप अपने आंसर पोस्ट कीजिए, और मेरा लिस्ट इतना बड़ा कर दीजिए कि भाई मुझे वो लिस्ट यहाँ पे दिखाना पड़ जाए, वो मीन्स स्लाइड के ऊपर कि इतने सारे नाम है, भाई मैं बता नहीं सकता. अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इट विल बी रियली वेरी ग्रेट. सो व्हाट्स द डायग्राम? द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू. You can see मेज जैसा डायग्राम है. राइट. सो देयर आर 4 वॉल्स. हमने आज 4 वॉल्स वाला क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पे सेंटर में भी एक हमारे पास पोर्शन आ गया है. सो बेसिकली अगर आप इसको तोड़ते हैं, इफ यू विल ब्रेक दिस,
you will get 5 different layers and you would be counting those, right? And post your answers in the chat box or in the comment box and let me know what is the exact answer to this. I hope you all must have enjoyed this session. आपका visualization better हुआ होगा. We shall be continuing with puzzle box and we shall be presenting you lot many wonderful questions, ताकि अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें मेंटल एबिलिटी आता है तो आप उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, राइट? सो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा. अगर मजा आया तो प्लीज लाइक क्लिक कीजिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनका भी भला कीजिए, राइट? एंड डू कम अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन. Until then, stay home, stay safe, and keep on learning at Vedantu. Bye.